everyone. हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है प्रोनाउन, उसकी एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक विद द पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि हम एक्सरसाइज सी से हमें हमारा चैप्टर है वो कंटिन्यू करना है। देखो फर्स्ट, द कैट वॉज हंग्री, इट वॉज लैप्ड अप ऑल द मिल्क। रोमन सेड टू युविका, डू नॉट वरी युविका, he will help her with the project. Mita was practicing in play in school function. She invited her grandparents its for its play. Enjoyed watching the play. Next one is देखो फोर्थ, Farooq lives across the street. He is my friend. Kaushal and Anil are running to school. They are late. John has a younger sister. He loves her a lot. Kishan said, "This is Aman's pants. It's him. I myself kept him here." The group from the other school is performing now. They will perform after them. Exercise D, fill in the blank with the suitable pronoun. यहाँ हमें exercise D, first one, these cows belong to Trishna and me. They are ours. The rabbits run into the burrow. Is that burrow there? The book belongs to Rita. It is hers. My mother gifted that dress to my mother. It is mine. If my sister doesn't get a new toy, she will take mine. It is for Nikhil to decide. This decision is his. No, this is not our house. That house is ours. I brought those pens. They are mine. Whose clothes are these? Are they yours? 10th. Yes, you are right. That small toy is yours. अब देखते हैं एक्सरसाइज ई। Underline the pronoun in the following sentence and draw what type they are. One has been done for you. This is a Hamid's books. Please it give to him. This demonstrative it personal or him पर्सनल। देखो यहाँ हमें सेंटेंस को क्लैरिफाई करना है और वो प्रोनाउन का टाइप क्या है वो लिखना है। देखो, दोज आर मानसीज डॉल्स, दे आर किप्ड ऑन द टेबल, तो दोज है डेमोन्स्ट्रेटिव। उसके अलावा जो दे और दे है, इट है, वो पर्सनल प्रोनाउन। देखो, आई एम गोइंग टू अ निधिज हाउस, यू शुड गो टू योर्स, तो आई पर्सनल प्रोनाउन, यू भी पर्सनल प्रोनाउन। फोर्थ वन, डेट इज अ रेड काइट, इट इज अ फ्लाइंग सो हाई, डेट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट है वो पर्सनल प्रोनाउन। और ओके, दो ही आएंगे। These are Arun's pencil. They are not mine. These demonstrative pronoun, they personal pronoun, और जो mine है वो भी personal pronoun ही आएगा। अब देखो आगे। The painting is beautiful. It is mine. तो यहाँ पर्सनल प्रोनाउन ही सब। Here is our car. Our, तो यहाँ our है पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ सभी है वो पर्सनल प्रोनाउन है। These are apples. They are ripe. यहाँ these डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और they है वो पर्सनल प्रोनाउन। अब देखते हैं एक्सरसाइज F. Given below are sentence with the reflexive and emphatic pronoun. Is them, read them carefully and write RP for a reflexive pronoun and EP for emphatic pronoun against each. यानी कि हमें EP और RP लिखना है, जहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वहाँ RP और EP जहाँ emphatic प्रोनाउन है। देखो, फर्स्ट वन, we often deceive ourselves,
तो यहाँ आएगा ईपी यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ completed द वर्क, तो यहाँ आरपी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द हॉर्स हैज हर्ट इटसेल्फ, तो यहाँ आएगा आरपी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Some people love talking about themselves. EP. She cooks food family herself. RP. He crushed himself. Reflexive pronoun himself है। Selves हो तो हमें EP वरना RP। They themselves offered help तो emphatic pronoun। Rohan himself told me that it was true. Himself है, self है, इसीलिए आरपी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जी, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ अब हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को करना है। When did he invited in his birthday party? WH. What you want to see this painting? What have you decided? Why have you decided to go? Sorry, when have you decided to go? अब है फोर्थ, फोर में आएगा ब्लंडर। यहाँ आएगा what of you has? What do you wish to see? How did they fight each other? सॉरी, यहाँ आएगा why सिक्स्थ में। About why are you speaking? About why are you speaking? What have decided? When have you decided to go? सॉरी, where आएगा, place है इसलिए where 8 में। सेवंथ है with whom were you discussing at the party? और 10th में आएगा what do you consider in the right? So this is the interrogative pronoun। यहाँ देखो चैप्टर नंबर 8 प्रोनाउन का कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रामर का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम है वर्ब्स। वर्ब्स यानी कि क्रियापद। देखते हैं, हर वाक्य में क्रियापद होता है, एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है। देखते हैं क्रियापद क्या है। Verbs tell us what the subject in a sentence are, what they do or what they process. Verb express actions or being positions। देखो क्रियापद क्या हमें सजेस्ट करते हैं, तो क्रियापद हमें क्रिया को सजेस्ट करते हैं, यानी कि हर वाक्य में क्रियापद है वो तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, नीलम इज अ गर्ल, नीलम है वो लड़की है, तो बींग। आई एट अ बर्गर डेली, मैं रोज बर्गर खाता हूँ। देखो एक्शन। और नीलम हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, पोजीशंस। तो ये सारे हैं क्रियापद। अब आपको क्वेश्चन होगा कि क्या ये इज भी क्रियापद है, तो हाँ, ये इज है वो क्रियापद है। एक्चुअली वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग, पहले बता दो कि कोई भी सेंटेंस क्रियापद के बिना इम्पॉसिबल है। आइदर इट इज अ वर्ब और इट इज अ हेल्पिंग वर्ब। देखो, का क्रियापद में मेन वर्ब होगा, का हेल्पिंग वर्ब होगा। तो देखो यहाँ इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, ईट है वो एक्शन है। तो देखो ईट है वो क्या है, मुख्य क्रियापद है। क्रियापद यानी कि ऐसे शब्द की जिस शब्द में ही क्रिया छिपी होती है। प्ले यानी कि खेलने की क्रिया, यहाँ ईट है तो खाने की क्रिया। टू राइट यानी कि लिखने की क्रिया। तो ये सारे हुए क्रियापद। फिर देखो, नीलम हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब पोजीशन दिखाएगा, पोजीशन यानी कि अधिकार और मालिकी दिखाएगा। यहाँ आई हैव अ पेन, तो मेरे पास पेन है। आई हैव अ पर्स, मेरे पास पर्स है। तो ये सारे हुए पोजीशन। अब देखो नेक्स्ट, वर्ब आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट important part of a sentence. In fact, we cannot form a sentence without verb. The children in the park is not a sentence. The children are playing in the park is a sentence। देखो यहाँ ये कहा है कि कोई भी वाक्य है वो क्रियापद के बिना इम्पॉसिबल है, यानी कि वाक्य में क्रियापद तो होते ही है।
क्रियापद हो अथवा हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं। देखो द चिल्ड्रन इन द पार्क, उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन देखो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, यहाँ प्लेइंग है वो क्रियापद को इंडिकेट करता है। टू प्ले यानी कि खेलने की क्रिया। तो ये आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे, तब चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन गुड बाय टू ऑल।